students have joined? Okay, the screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's wait for a few minutes until the strength joins. I yesterday told you from where to find the attendance forms. So I'm again telling because I won't be pasting the attendance link daily. You should know that I have made the tabs available here. When you expand it, you will find the tabs for the attendance. Just scroll down and these are the two attendance forms for both of the sections separately. So you can go from here to the attendance link daily and you can punch your attendance, right? Okay, yesterday we just discussed some of the basic concepts regarding to the subject, that what we basically are going to cover in this subject. So how many CLOs are there which we have to cover in this subject? We have to cover 3 CLOs in the theory, whereas we have to cover 1 CLO in the practical, right? So we discussed some of the examples like why do we need to use the ADC and how we can build a microcontroller based system. So moving ahead from this point, this is somewhat a little expansion to what we discussed yesterday, that the very first very basic CLO, that is CLO number 1, it will be basically about the microcontroller architecture and the applications that where we can utilize the microcontroller. Similarly, the families of the microcontroller, that we have mega family, classic family. We will be covering the families of the microcontroller in detail, but on the whole, this basic concepts and basic knowledge about the microcontroller, it will be related to CLO1. Then whatever we have inside the microcontroller, the different internal blocks, their usage, their communication, that how do we connect with the outside world, how do we communicate with different devices with the help of the microcontroller. So this interaction will be covered in CLO2, not only with the outside world, but also the internal characteristics. Internal characteristics means that this ADC, this is built in the microcontroller. Similarly, there are interrupts which are present in the microcontroller. You don't have to connect any other controller in order to use the interrupt feature. Interrupt term is basically हम कहते हैं मुदाखलत करने को, इंटरफेयर करने को. अब जैसे अगर आप यूज कर रहे हैं अपना लैपटॉप, तो अगर आप कीपैड या टच पैड को यूज कर रहे हैं, तो जो आपकी फिंगर मूवमेंट है, इससे एक तरह का इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये माउस का जो पॉइंटर है वो स्क्रीन के ऊपर मूव हो रहा है. इसी तरीके से जब आप कीज प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो ये इंटरप्ट जनरेट करते हैं. या आप अपनी इसके अंदर लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर अगर डेटा राइट कर रहे हैं, तो भी आप इंटरप्ट की वजह से ये काम कर रहे हैं. अच्छा, मैं किसी से अगर क्वेश्चन पूछूं, राइट, इफ आई आस्क वन बाय कॉलिंग योर रोल नंबर्स, तो ये वाली जो टेक्निक है ये कहलाती है पोलिंग, पोल करना.
और अगर मैं ऐसे कहूँ कि इस सवाल का जवाब किसको आता है और आप उस पे जो है वो एनीवन फ्रॉम यू रेज द हैंड, तो इसका मतलब ये है कि जिसने जिसने रेज किया है हैंड, मैं सिर्फ उसी से क्वेश्चन करूं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मुझे एक एक से पूछना नहीं पड़ेगा कि इसको जवाब आता है या इसको जवाब आता है। तो ये वेट ना करने वाला जो मैकेनिज्म है, और उसमें डायरेक्टली यू कैन गो टू द डिवाइस जिसने अटेंशन मांगी है, इस चीज को हम कहते हैं कि ये इंटरप्ट का मैकेनिज्म है। तो इसमें डायरेक्टली जो भी डिवाइस है वो सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकती है कि मुझे सर्विस चाहिए, या मुझे अटेंशन चाहिए, या मुझे कंट्रोल चाहिए। इस चीज को हम कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट्स कौन से होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, कौन से होते हैं, ये सारे जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इंटरफेसिंग टेक्निक्स हैं कि कैसे आप दूसरी डिवाइसेस को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर कोई जो है वो सिस्टम हम डिजाइन करें। तो ये सारा जो है दिस विल बी कवर्ड इन CLO2। अच्छा, फिर हमारे पास CLO3, जैसे हमने बात की कि रियल टाइम एग्जांपल्स हो गई, रियल टाइम एप्लीकेशंस हो गई, तो हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से कि किसी इंडस्ट्री की हमने बात कर ली जहाँ पर हमें टेम्परेचर को भी मेंटेन करना है, जहाँ पर हमें प्रेशर को भी मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन करना है, या इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसके अंदर हम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम बनाएं। जैसे कि कोई होटल है, उसके अंदर हमें फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक बनाना है। अब फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम अगर ऑटोमेटिक बनाना है, इसका क्या मतलब कि मुझे स्मोक डिटेक्टर चाहिए होगा कि अगर कहीं आग लग गई है तो वो स्मोक को डिटेक्ट कर सके, या जो हीट है, टेम्परेचर है, उसको डिटेक्ट करे। तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को अगर इन सेंसर्स की वैल्यू क्रॉस कर जाती है तो इसका मतलब है कि आपने फायर को डिटेक्ट किया, और उस वक्त जरूरत है कि वो जो आपने यहाँ डिपार्टमेंट में भी देखा होगा कि रेड कलर के सिलेंडर्स लगे होते हैं जिसमें वॉल्व होता है, उसको प्रेस करते हैं तो जो गैस है उसके थ्रू फायर एक्सटिंग्विश होती है। तो उसको हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं कि जैसे ही डिटेक्शन हो। तो इस तरह की बहुत सारे रियल टाइम एप्लीकेशंस बन सकती हैं, या इस तरह के बहुत सारे सिस्टम बन सकते हैं जो कि आप माइक्रो कंट्रोलर बेस उसका प्रोटोटाइप बनाएं। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं कि हम जो क्लास के अंदर अपना मैकेनिज्म रखेंगे चीज़ों को लर्न करने का, उसके अंदर हमारा पैटर्न वो किस तरह से होगा कि हमने कॉन्सेप्ट को समझा। इसका मतलब है कि लेट्स से कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर्स, वी विल लर्न अबाउट द रजिस्टर्स, दैट हाउ मेनी रजिस्टर्स आर देयर, व्हाट इज द वर्ड साइज ऑफ पर्टिकुलर रजिस्टर। एक जो रजिस्टर है उसमें 8 बिट हैं या 16 बिट हैं। फिर उसको जो हमें यूज़ करना है, मतलब हार्डवेयर को आप स्टैंड अलोन एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हम बात कर रहे हैं एम्बेडेड डिवाइसेस की या प्रोग्रामेबल डिवाइसेस की, तो इसका मतलब है कि हमें उसको यूज़ करने के लिए उसकी इंस्ट्रक्शन चाहिए। या तो अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका सिंटैक्स चाहिए, उसको हम सिंटैक्स कह रहे होते हैं। और अगर हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमें तरीका चाहिए कि उसको हम किस फॉर्मेट में लिखें। हम A+B करके नहीं लिख सकते असेंबली में, हमें ऐड का नेमोनिक यूज़ करना पड़ेगा। मैंने नेमोनिक बताया था कल के नेमोनिक क्या चीज़ होती है। वुड एनीवन टेल मी व्हाट डू वी मैम मीन बाय नेमोनिक? एब्रिविएशंस। यस, द एब्रिविएशंस आर कॉल्ड मैम द एब्रिविएशंस नेमोनिक्स। होती है। एब्रिविएशंस हो गई, शॉर्ट मैम नोटेशंस असेंबली हो गई। लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं। सही। तो तो इसको जो है वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। वॉट एवर वी विल लर्न, लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ADC, देन हाउ टू यूज इट, वी विल यूज डिफरेंट एग्जाम्पल्स। अब कल हमने जैसे एक एग्जाम्पल कॉन्सेप्शनल भी हो सकती है, जैसे कल हमने एक सिस्टम लेट्स से AC की बात की थी कि अगर हमें उसे ऑटोमेटिक बनाना है, या जो है वो हमें हीटर को ऑटोमेटिक बनाना है। तो ये आपकी कॉन्सेप्शनल एग्जाम्पल थी, बट उसके साथ साथ हम उसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी करेंगे कि अगर हमें एक काम करना है तो इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। हमने इसका एक रफ स्केच या एक आइडिया जो है वो कल की एक एग्जांपल से डिस्कस किया था, ताकि जो भी आप ब्लॉक पढ़ रहे हैं या जो भी पीस ऑफ हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, या माइक्रो कंट्रोलर का इंटरनल ब्लॉक पढ़ रहे हैं, या ओवरऑल हम इस एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी हमें रियल टाइम एप्लीकेशन पता हो। क्योंकि जब तक आप किसी सब्जेक्ट को इस लेवल पर आकर नहीं समझते ना कि ये इस्तेमाल कहाँ पर होगा, या इसका इंडस्ट्री में क्या यूजेज है, या इसका
किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, जब तक आप उसका इम्पैक्ट नहीं समझते कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम कैसे डिजाइन करें, बिकॉज बेसिकली this is the requirement of being engineer, that how do you apply your knowledge that could be related to any field. So when you are applying your field or knowledge of your field into the real scenario or into the real time applications, that's the benefit of your study or that particular subject. तो हम different examples के through conception wise भी पढ़ेंगे और उसको हम प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी पढ़ेंगे कि इस अगर हमें काम करना है तो होगा कैसे। जैसे अब कल हमने एक आइडिया डिस्कस किया कि अच्छा रिमोट कंट्रोल के थ्रू अगर हम ये काम होता है तो फिर हमने उसके पीछे की प्रोसेसिंग सोची ना कि रिमोट ऐसा क्या काम करता है, उसमें IR LED लगी होती है या वो कोड भेज रहा होता है, और कोड का मतलब है कि वो डिफरेंट पैटर्न्स जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से जो रिमोट कंट्रोल की सेंसर सर्किटरी है उसको ये समझ आ रही होती है कि अच्छा FF आया तो मतलब ऑफ करना है, अगर 0-1 का पैटर्न आ रहा है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम अप करना है, टीवी की अगर हम बात करें, या टेम्परेचर अप करना है या डाउन करना है, डिपेंडिंग अपॉन विच अप्लायंस वी आर controlling through that remote control, or which appliance remote control we are trying to replicate, right? अच्छा, इसी तरीके से अब एक दो एग्जांपल्स मैंने दी, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट कैन बी द एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और दिस पर्टिकुलर device or this particular anything, right? But that application should come in your mind, so we are not dependent upon whatever we are learning. We should be able to think out of the box, what are the things or what applications we can design. क्लास की मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग खुद से अपनी एप्लीकेशन बताएं कि इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है. सो आई वुड बी टेकिंग योर इनपुट वेरी फ्रिक्वेंटली बिकॉज I want the lecture to be interactive so that I can know that you are getting the concept. अच्छा, बेस्ट आइडिया या बेस्ट लॉजिक के इन सब में जो है वो सबसे अच्छा जवाब किसका है, या इस तरह से हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे. ऐसा नहीं है कि बस आप ही बोलते रहें, पता चला मैं इंतजार करती रहूं, लेकिन ये कि कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में आने चाहिए और आपकी तरफ से इनपुट आना चाहिए कि आपका दिमाग खुले कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी है तो इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस विल बी द लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ आवर क्लास. Okay, before moving formally to the introduction to the subject, as we discussed in the last class as well, that there is some prerequisite for this subject, right? What is that prerequisite? That you should have a grip on the subject of digital electronics. आपका जो subject है digital electronics, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए. आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन अलग अलग पढ़ा है या एक ही में मर्ज पढ़ा है? मैम एक ही साथ पढ़ा था. मैम एक ही में पढ़ा है. अच्छा, ठीक है. तो आप इसके अंदर जो है वो ये काउंटर्स और रजिस्टर्स इस तरह की चीजों तक गए हैं, सिक्वेंशियल मशीन्स वगैरह? यस मैम, काउंटर्स एंड रजिस्टर्स. काउंटर्स एंड नो मैम. रजिस्टर्स तक, और ये सिक्वेंशियल मैम मशीन्स? जी मैम फ्लिप फ्लॉप तो पढ़ा था. था और हमने सिर्फ डिजिटली फ्लिप फ्लॉप तक पढ़ा था. उसके बाद काउंटर्स और काउंटर्स चल का तो वो खुद से रटा लगाया था. और जी मेमोरी मैम मैम वो सर, मैम वो प्रैक्टिकल में सर ने करवाए थे सर, कामरान ने. अच्छा, सर ने और मैम मैम आखिरी 4 लैब एक ही दिन में कराए थे. हमें तो पता ही नहीं चला कि सीक्वेंशियल है क्या. और मेमोरी डिवाइसेस वो पढ़ी हैं आपने? नो मैम, वो भी नहीं. नो मैम, रैम पूरा वगैरह भी? सीक्वेंशियल हमने नहीं पढ़ा था लास्ट में. अच्छा, सिक्वेंशियल के अलावा भी सिक्वेंशियल से हटके, क्योंकि सिक्वेंशियल में आप मशीन्स की बात करते हैं, तो जो ये रैम हो गई या रोम हो गई, ये मेमोरी डिवाइसेस पढ़ी हैं आपने? यस मैम, इनका तो थोड़ा है कॉन्सेप्ट. थोड़ा है मतलब इसकी इंटरनल मैकेनिज्म आपने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ, राइट? मैम ये कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है मैंने. कंप्यूटर के एप्लीकेशन में सर रिजवान ने 60, you want to say something? Your hand is raised.
और नहीं कुछ पूछना है तो इसको काइंडली रिमूव कर लें। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम में या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो इसके अंदर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो जो मैं प्री रिक्विजिट की बात कर रही हूँ कि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। बुलियन लॉजिक, नंबर सिस्टम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट बेस के साथ नंबर सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, ये जो बुलियन लॉजिक है ये क्या होती है, ये मुझे कौन बताएगा, क्या मतलब है बुलियन लॉजिक से? दिस इज काइंड ऑफ अ रीकैप। मैम ट्रू एंड फॉल्स जिसमें डिसीजंस वगैरह होते हैं। ट्रू एंड फॉल्स डिसीजन होते हैं, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? अगर मैं उसको नंबर में रिप्रेजेंट करूं तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 and 1 से कॉम्प्लीमेंट लगा के या 0 और 1 की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, ट्रू फॉल्स हो गया, यस नो हो गया, 0 और 1 की फॉर्म में हो गया। तो इस लॉजिक को बुलियन क्यों कहते हैं? Why do you call it Boolean logic? Any answer? मैम बुलियन अलजेब्रा यूज होती है ना इसमें। तो जो बुलियन अलजेब्रा होती है उसको बुलियन क्यों कहते हैं? ये बुलियन का लफ्ज मैम क्यों आ रहा है साइंटिस्ट इसमें? का नेम था आई गेस। यस, तो ये जो है वो बूल साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है इसलिए इसको कहते हैं, वरना कोई इसके मीनिंग नहीं है। तो ये उसके नाम के ऊपर है जिसने इसको आइडेंटिफाई करके या ये आइडिया दिया कि आप इस लॉजिक को यूज कर सकते हैं, वंस और जीरोस, ठीक है। अच्छा, ये जो नंबर सिस्टम के अंदर अगर बुलियन लॉजिक 0 और 1 या यस और नो वाली बात हम जो कह रहे हैं, तो हमें रियल सिनेरियो में, रियल टाइम एप्लीकेशन में ऐसी कौन सी चीजें मिलती हैं जिनका हम आंसर ट्रू फॉल्स दे रहे होते हैं या यस और नो दे रहे होते हैं? कोई एग्जाम्पल? हिंट ये है कि आप इसको प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। यस मैम, हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं जहाँ पे कंडीशनल एग्जीक्यूशन होती है ना, तो वहाँ पर इसका यूज होता है कि ट्रू, इन केस ऑफ ट्रू और फॉल्स हमें आंसर मिलता है, कोई भी कंडीशन हम चेक करते हैं तो। एग्जैक्टली जब हम लूप यूज कर रहे होते हैं या कंट्रोल ओरिएंटेड इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे होते हैं, जैसे आपका फॉर लूप हो गया या वाइल की कंडीशन हो गई या डू वाइल हो गया, इस तरह की, या इफ देन एल्स हो गया, तो इन सब कंडीशंस में हमें ट्रू या फॉल्स की जरूरत पड़ रही होती है या आंसर येस और नो में चाहिए होता है। अब जो हमने कल की एग्जाम्पल की थी जिसमें हम कह रहे थे कि ये टेम्परेचर एक्सीड कर गया नहीं कर गया, तो डिसीजन तो हमारे पास येस और नो में आ रहा है ना। तो एक तो हमें कंडीशनल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें ज़रूरत होती है। बाकी जो नंबर है, क्योंकि हमने कहा कि हमारे जो नेचर में क्वांटिटीज़ हैं वो एनालॉग हैं, और जो कंप्यूटर या जो हमारी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सब बाइनरी पे काम कर रही होती हैं। तो इसलिए जो है वो डिजिटल लॉजिक का मतलब या बाइनरी लॉजिक का क्या मतलब है कि अगर आपने जो है, जैसे आप स्विच को आप कह रहे हैं यस और नो, अब एक पंखा आप चला रहे हैं, हालांकि आप तो बटन ऑन या ऑफ कर रहे हैं, तो इसको आप 1 और 0 कैसे कह रहे हैं? या जो है आप ट्रांजिस्टर को भी तो एज अ स्विच यूज करते हैं ना, तो ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करने का क्या मतलब है? अब इसमें आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है। ट्रांजिस्टर जब आप यूज करते हैं तो उसको एज अ स्विच यूज करने का मतलब आप उसको किस ऑपरेटिंग रीजन में यूज कर रहे हैं? मैम सेचुरेशन और कट ऑफ। यस, सैचुरेशन में या कट ऑफ रीजन के अंदर। तो बेसिकली उसके पास तो वोल्टेजेस हुए ना, जिसको आप कह रहे होते हैं कि ये वोल्टेजेस की रेंज है जो सैचुरेशन के अंदर जाएगी, तो फिर ये कहलाएगा कि ये 1 वाली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ऑफ वाली जो स्टेट है उसको आप कह रहे हैं कि वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरीके से हमारे पास आता है कि TTL लॉजिक है या CMOS लॉजिक है, तो इनकी वोल्टेज रेंजेस होती हैं। तो बेसिकली 0 से लेकर 2.4 वोल्ट तक है तो आप कहते हैं कि ये लो या 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और अगर 3.4 से लेकर 5 वोल्ट तक है तो फिर आप कह रहे होते हैं कि ये लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये रेंजेस को आपने 0 और 1 से शो किया हुआ होता है। अब कोई आप आईसी है, ठीक है, आपने काउंटर्स की आईसी यूज की, आप ट्रेनर के ऊपर लगा रहे होते हैं या आप ब्रेडबोर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आप काउंटर की काउंट को देखते थे कि ये एलईडीज जल रही हैं, उससे आप अंदाजा करते थे कि बाइनरी पैटर्न 000
1 आ रहा है इसका मतलब है ये 1 की इक्विवेलेंट काउंट है, 0 0 1 0 आ रहा है तो ये 2 की इक्विवेलेंट काउंट है। लेकिन अगर आप उसकी पिन्स के ऊपर देखें जिस पर आपने एलईडीज लगाई हुई है, तो क्या वाकई पे वहां पे 0 और 1 आ रहे होते हैं या कुछ और आता है? ये कैसे आप मेजर करते हैं? अगर मैं एलईडी ना लगाऊं, मेरे पास कोई एलईडी नहीं है, तो क्या ये चीज मुझे नहीं पता चल सकती कि यहाँ पे क्या पैटर्न जनरेट हो रहा है? फिर आप कैसे मेजर करेंगे? अगर मैं आपको एलईडीज ना दूं और मैं आपको काउंटर की आईसी ब्रेडबोर्ड पे लगा के दूं और मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके पास काउंटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, कोई आपके पास मॉड 10 काउंटर है, कोई आपके पास मॉड 8 काउंटर है, या आपसे डिजाइन करने के लिए कह दिया जो आप लॉजिकल गेट्स एक्सटर्नली लगा के उसकी काउंट को ट्रंकेट करते हैं ना कि आपको 10 तक चाहिए या 16 तक काउंटिंग चाहिए। तो लेट्स से मैं आपको एक काउंटर की आईसी दूं और मैं कहूं कि नाउ आइडेंटिफाई that this is mod 10 counter or mod 8 counter or mod 16 counter, whatever may be the highest limit of that counter. So how will you judge without having the LEDs indication? Can you judge without having the LEDs indication? यस मैम। यस मैम मैम, मैम हम वोल्टेज से भी और लॉजिक एनालाइजर से भी। एक मिनट, एक बताए। मैम हम आउटपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे। 21 you are speaking right? यस मैम, जी, आउटपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे हम। आउटपुट पे वोल्टेज चेक करने के लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। व्हाट कैन बी दैट इंस्ट्रूमेंट? वोल्ट मीटर मैम। voltmeter means you can use a multimeter। तो यस मल्टीमीटर में अगर आपको जो है वो कैसे पता चलेगा कि इसको आप 1 कंसीडर करें या आप 0 कंसीडर करें? मैम फिर उसके डिफरेंट लेवल्स होंगे ना वोल्टेज के, जो मतलब वहाँ से पहले से स्पेसिफाइड होंगे कि भाई अगर इतने पे होंगे तो मतलब ये एलईडी जलेगी। वो हमें पैटर्न देखना पड़ेगा पीछे से, ज़्यादा डीप में पता नहीं है लेकिन ये पता है कि यही होगा। होगा इसी मैम तरीके मैम से। टाइमिंग हाँ, कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें जो फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब हो रहा है वो सब सिस्टम। अच्छा, टाइमिंग वाली जो चीज है, टाइमिंग को आप वोल्ट मीटर से कैसे देखेंगे? जवाब दोनों सही है। ये 29 ने जवाब दिया ना, अभी किसने जवाब दिया? यस मैम। ठीक है, 21 का भी आंसर सही है, 29 का भी आंसर सही है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन टू काइंड्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपने यानी मल्टीमीटर लगा लिया या वोल्ट मीटर लगा लिया, और वोल्ट मीटर से आपने ये चेक कर लिया, लेट्स से अगर 0.2 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब कि ये बाइनरी लॉजिक कौन सी बनी? 0.2 वन में वोल्ट बनी, वन लो, में बनी। अगर मिली वोल्ट में मैम दे लो रहे तो लो बनी। ठीक है, लो नहीं बनी। मिली वोल्ट में नहीं, मैं 0.2 वोल्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पास रेंज है वो 0 से 5 वोल्ट की रेंज है। ठीक है, और आपकी जो आईसी है वो है टीटीएल लॉजिक वाली। तो आपको पता है कि टीटीएल लॉजिक के अंदर रेंजेस इस तरीके से होती हैं, 0 से 2.4 के दरमियान है तो आप उसको लो लेवल यानी कि 0 कंसीडर कर रहे होते हैं, और अगर 3.4 से अबव है तो फिर आप उसको लॉजिक हाई यानी कि 1 कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये तो आ गया वोल्ट मीटर की रीडिंग के थ्रू। अच्छा, 29 ने जो कहा कि हम उसकी टाइमिंग डायग्राम को देखेंगे, तो या टाइमिंग या फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, तो क्योंकि टाइम और फ्रीक्वेंसी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके लिए तो फिर हम वोल्ट मीटर नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि वोल्ट मीटर पे तो हमें टाइम नहीं पता चलेगा। तो उसको फिर हम कैसे ऑब्जर्व करें? वी नीड मैम उसके लिए मैम लॉजिक ऑसिलोस्कोप। एनालाइजर से। यस, वी मैम कैन यूज लॉजिक एनालाइजर से भी कर सकते। we can use a logic analyzer, we can use a simple oscilloscope as well। जो आपके पास oscilloscope है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये सिंपली उस आईसी की पिन के ऊपर आपने प्रोब लगाया, लॉजिक एनालाइजर का लगाया, या आपने जो oscilloscope है, that can be your analog oscilloscope or that can be your digital oscilloscope or that can be your digital storage scope, whatever instrument you are using। तो फिर आपको वो टाइमिंग डायग्राम उस पर नजर आएगी। वही जो आपको 0.2 वोल्ट था, या लेट्स से आपको 3.8 वोल्ट मिल रहा है, तो वो 3.8 वोल्ट आपको कुछ देर तक मिलता रहेगा, तो आप कहेंगे कि ये इतनी देर तक 1 रहा है, क्योंकि 3.4 से अबव है तो आप उसको 1 कंसीडर करेंगे। सो आप बगैर एलईडीज के भी जो है वो देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉइंट ये था कि ये जो बुलियन लॉजिक है इसके थ्रू आपको मतलब लेट्स से अगर हम काउंटर की बात कर रहे हैं तो हमने कहा 4 बिट का अगर पैटर्न है तो हमें 4 प्रोब्स चाहिए। ठीक है, आपके जो लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं या लैब के अंदर जो ऑसिलोस्कोप मौजूद हैं उसमें कितने चैनल्स होते हैं?
कितने चैनल वाले ऑसिलोस्कोप आपने प्रैक्टिकल्स में यूज किए हैं? 2 चैनल टू 2 चैनल मैम 2 चैनल मैम मैम 2 मैम चैनल 2 वाले चैनल होते हैं, ठीक है, तो तो 2 आपने दो चैनल का। चैनल्स वाले यूज किए हैं। लॉजिक एनालाइजर के अंदर ये फायदा होता है कि उसके अंदर 8 चैनल्स जो हैं वो मौजूद हैं या 16 चैनल्स मौजूद हैं, उनको कलेक्टिवली एक बस की सूरत में प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो लॉजिक एनालाइजर है वो हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स की मेजरमेंट या उसकी विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि कलेक्टिवली आप पूरी बस का डेटा दे सकते हैं। अगर मैं कहूँ मैं 8 बिट काउंटर मैं बात कर रही हूँ जिसके अंदर मुझे 8 बिट्स की काउंटिंग मिल रही है, तो मैं आठों की आठों बिट का पैटर्न लॉजिक एनालाइजर के पास, क्योंकि इतने चैनल्स हैं, उसके थ्रू देखे जा सकते हैं। बट सी from where we only started from the Boolean logic, but you can visualize the applications where we are going towards the ICs, towards the counters and towards the registers, and finally we are moving towards the microprocessor or the microcontroller. But the basic concept of developing a Boolean logic was to get the digital data processed, कि उसके लिए आपके पास डिजिटल के अंदर जो आपके सिस्टम्स हैं उसके लिए जो है वो ये बुलियन लॉजिक इसकी बेस बनी। फिर आपने जो डिफरेंट नंबर सिस्टम पढ़े जिसके अंदर आपने बेस 2, अगेन इट इज द बुलियन लॉजिक विच इज आल्सो कॉल्ड एज द बाइनरी लॉजिक। लेकिन इसके अलावा हमारे पास बेस 8 भी होती है, 10 भी होती है, 16 भी होती है। बेस 8 वाले नंबर्स को क्या कहते हैं? मैम ऑक्टल। ऑक्टल। और बेस 10? डेसिमल। डेसिमल। बेस 16 को हेक्साडेसिमल। तो ये आपके पास जो है वो बेस 2 बाइनरी हो गया, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो अब इनका क्या, इसमें सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे होते हैं, एक तो हमारी बाइनरी लॉजिक जिसका हमने पूरा अभी बैकग्राउंड डिस्कस किया। डेसिमल नंबर आपकी डेली काउंटिंग में या सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की या इस तरह की प्रोग्रामेबल डिवाइसेस की, तो वहां पर हम हेक्साडेसिमल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि अब मैं कहूँ कि 65536 है, ठीक है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनेगा, या मैं कोई लैक्स के अंदर नंबर कहूँ तो उसका, तो वो बाइनरी पैटर्न याद करना बड़ा मुश्किल है, या उसको रिप्रेजेंट करने में आपको उतनी ही स्पेस चाहिए। तो एक तो ये आपका कॉम्पैक्ट हो जाता है, दूसरा ये जो लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की या जैसे असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज जब कन्वर्ट होती है, जो भी लैंग्वेज की हम बात कर रहे होते हैं ना, कि आपके पास 3 तरह की लेवल्स होती हैं। एक लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि बिल्कुल 0 और 1 की फॉर्म में जो कंप्यूटर को समझ आती है। ठीक है, फिर आपके पास आती है मिडिल लेवल लैंग्वेज, जो असेंबली लैंग्वेज उसकी एग्जांपल है, जिसमें ये एब्रिविएशंस हो गई जो कि हमें भी समझ आ जाती है कि अगर ऐड लिखा हुआ है तो मतलब एडिशन करनी है, या सब लिखा हुआ है तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन करनी है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल की लैंग्वेज हो गई। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये कि जो यूजर से या प्रोग्रामर से ज्यादा करीब है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं समझ में आती, तो बीच में इसको क्या करना पड़ता है कि इन लैंग्वेजेस से कन्वर्ट करना पड़ता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो जो कन्वर्ट करते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, उनको क्या कहते हैं? जैसे आपने लैंग्वेज प्रोसेसर, हाँ, मैम लेकिन डिकोडर्स। नो, डिकोडर्स आपके पास अलग कंपाइलर चीज हो बोलते हैं जाती मैम, है। कंपाइलर बोलते हैं। कैन यू रिपीट दिस? कंपाइलर बोलते हैं मैम उसे। कंपाइलर, अच्छा ठीक है। अच्छा, कंपाइलर के अलावा एक और चीज होती है। कंपाइलर के अलावा आपने इंटरप्रेटर का नाम सुना है? होते हैं। यस मैम। इंटरप्रेटर। So, can you tell me the difference between the interpreter and the compiler? मैम जो इंटरप्रेटर होता है ना, वो लाइन बाय लाइन हर इंस्ट्रक्शन को चेक करता जाता है, वाइल जो कंपाइलर है उसमें हम पूरा कोड एट ए टाइम लिख के देन उसको कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, फिर वो शो करेगा इफ देयर इज एनी एरर। राइट, तो बेसिकली आपके पास ये होते हैं ट्रांसलेटर्स। ठीक है, ट्रांसलेटर क्या करता है कि एक जो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर वाली लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, अब वो मिडिल लेवल लैंग्वेज से करे या हायर लेवल जो लैंग्वेज है उससे करे।
C++ हो गई, जावा हो गई, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गई, तो ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इससे कन्वर्ट करने के लिए जो आपको ट्रांसलेटर चाहिए होता है वो कंपाइलर होता है, जो कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज से जो कन्वर्ट करता है, जो ट्रांसलेट करता है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज से करता है इसलिए उसको कहते हैं असेंबलर, ठीक। अच्छा, इंटरप्रेटर का मतलब ये होता है कि वो लाइन बाय लाइन, जैसे बेसिक लैंग्वेज है तो बेसिक लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, वहां पर इंटरप्रेटर यूज होता है, यानी वो पूरे प्रोग्राम में से एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। अब असेंबली लैंग्वेज की जैसे हमने बात की कि असेंबली लैंग्वेज है क्या, ये आपको पता चला कि 3 लेवल्स में से एक लेवल हो गई। तो असेंबली लैंग्वेज को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये बाइनरी में लिखने के बजाय अगर हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर लिखें तो हमें आसानी हो जाती है। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ बेस बना रहे हैं कि जहां तक आपने पढ़ा है पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से, उससे हम कैसे उसकी बेस के ऊपर हम माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जा रहे हैं। तो ये नंबर सिस्टम हमें लैंग्वेजेस को समझने में मदद देते हैं, उसकी प्रोसेसिंग जो है उसको समझने में मदद देते हैं, यानी ये उसकी एप्लीकेशन है। फिर आपके पास डिजिटल लॉजिक गेट्स आ गए कि आपकी डिफरेंट जो भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनली हार्डवेयर क्या यूज होगा माइक्रो प्रोसेसर का। कल भी हमने बात की थी कि माइक्रो कंट्रोलर हो गया या आपका जो सीपीयू हो गया, उसके अंदर एएलयू लगा हुआ है, यानी अगर आप कोई अरिथमेटिक टाइप की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो एएलयू उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप कोई लॉजिकल ऑपरेशन करवा रहे हैं, कोई शिफ्टिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं, और ये सब किसके थ्रू हो रहे होते हैं, एएलयू के अंदर खुद किया है, डिफरेंट लॉजिक गेट्स लगे हुए जिसकी मदद से ये काम हो रहा है। बिट्स हो गई, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटीज हैं, वो आप किस में मेजर कर रहे होते हैं, बिट्स में कर रहे होते हैं, बाइट्स में कर रहे होते हैं, एंड सो ऑन। तो इसका भी इस्तेमाल आएगा। मेमोरीज हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें रैम की जरूरत पड़ती है, रोम की जरूरत पड़ती है, EEPROM की जरूरत पड़ती है। सो देयर आर वेरियस वेरिएशन ऑफ द सेमीकंडक्टर मेमोरीज। दिस वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक कि कौन कौन सी मेमोरीज होती हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सीपीयू अगर है तो सीपीयू के अंदर का आर्किटेक्चर क्या है, एक जगह से डेटा दूसरी जगह लेके जाना है, लेट्स से एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर लेके जाना है, या सीपीयू से मेमोरी डिवाइस पे लेके जाना है, रैम पे या रोम पे, तो हमें पाथ चाहिए किसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करें। आप सिंपली अगर एक काउंटर की लगाते हैं आईसी, चाहे वो ट्रेनर पे लगाएं चाहे वो आप ब्रेडबोर्ड पे लगाएं, तो आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है ना एलईडी से भी, या ब्रेडबोर्ड पे भी आप सर्किट बनाते हैं तो आपको क्या लगाने पड़ते हैं, वायर्स लगाने पड़ते हैं। तो बेसिकली जो वायर्स का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल वायर्स हैं, उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं बस। अगर वो डेटा लेके जा रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये डेटा बस है। अगर कोई एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं हम, उस वायर्स के ऊपर एड्रेस जनरेट हुआ है तो हम कहते हैं कि ये एड्रेस बस है। अगर हम कंट्रोल टाइप का कोई सिग्नल दे रहे हैं, जैसे आपके जो फ्लिप फ्लॉप्स हो गए या जो काउंटर्स हो गए, उसमें कुछ कंट्रोल टाइप के सिग्नल होते हैं ना कि इनेबल करना है, चिप को इनेबल करना है, या चिप सिलेक्ट का सिग्नल है। आपने काउंटर्स में भी देखा होगा, क्लॉक सिग्नल के अलावा ये इस तरह के सिग्नल्स होते हैं, या रजिस्टर्स में आपने देखा सीरियल इन पैरेलल आउट के आपको कौन सा ऑपरेशन चाहिए, तो ये कंट्रोल टाइप के सिग्नल्स होते हैं। तो अगर कंट्रोल टाइप के सिग्नल्स किसी वायर पर आ रहे हैं तो फिर वो कहलाती है कंट्रोल बस। अब हमने ये दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एक हमने लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। क्विकली बताएं जरा मुझे कि कितनी काइंड्स होती हैं लैंग्वेजेस की, लेवल्स होती हैं कितनी? मैम 3। 3 लेवल्स होते हैं। 3 होती हैं, ठीक है। उनके नाम क्या क्या होते हैं? हाई लेवल, लो लेवल एंड असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, लो लेवल लैंग्वेज हो गई, और आपके पास जो है वो मिडिल जो लेवल है उसमें एग्जाम्पल है उसकी असेंबली। जैसे अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज कहूँ तो एग्जाम्पल हो गई C++ है, हो गई सी लैंग्वेज, हो गई पाइथन, हो गई है जावा। ये लैंग्वेजेस की काइंड्स हो गई कि एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं, ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेट जो करता है बाइनरी के अंदर। 01, कैन यू आंसर? जीरो वन। मैम कंपाइलर। मैम आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जो हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, वो क्या कहलाता है? उस ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं?
वैसे जवाब दे दिया था इसका 61 ने। मैम कंपाइलर। कंपाइलर, ठीक है। और जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें अगर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट मैम करता है, इंटरप्रेटर। ठीक है। तो एक तो हमने लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट मतलब डिस्कस किया। अच्छा, बसेस कौन कौन सी होती हैं, मैंने अभी अभी डिस्कस किया। बसेस कौन कौन सी होती हैं? मैम डेटाबेस होती है, मैम एड्रेस डेटा बस। बस होती है, एड्रेस बस होती है। एड्रेस बस। ठीक है, डेटा बस हो गई हमारे पास, कंट्रोल बस हो गई और एड्रेस बस हो गई। ठीक है, इसकी इंटरकनेक्टिविटी हम पढ़ेंगे जब हम इसका माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अब ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिवीजन है कि नंबर सिस्टम की मैंने बात की या हमने बुलियन लॉजिक की बात की। इससे फिर डिफरेंट कोड्स डेवलप होते हैं। कोड्स आपने काफ़ी सारे जो हैं वो कोड्स पढ़े हैं कि आस्की कोड हो गया या ग्रे कोड हो गया या एब्सिडिक कोड हो गया एंड सो ऑन। तो ये भी नंबर सिस्टम से इवॉल्व हुए हैं। ट्रुथ टेबल है, बाइनरी लॉजिक के थ्रू हम ट्रुथ टेबल बना रहे होते हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस और लॉजिक गेट्स बना लेते हैं और फिर फाइनली हम कंप्यूटर की तरफ आए। सो यू सी दैट हाउ योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इवॉल्व्ड इन मेकिंग द डिफरेंट सर्किटरी। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा रिवीजन है कि बाइनरी से अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी और नंबर सिस्टम के अंदर, लेट्स से द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज द नंबर इज दिस वन 1 and 6 times 0, ये बेस 2 के साथ है। इसका मुझे बताएंगे कि ये डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट बनेगा? मैम 64। 64 के इक्विवेलेंट बनेगा। कैसे निकाला? मैम ये फर्स्ट जो है जेन मैंने तो 1 होगा, फिर 2, फिर ऐसे करते जाएंगे तो 32 के बाद 64 आएगा। ये 64 के बराबर होगा। रिप्लाई कौन कर रहा है? मेहताब रिप्लाई कर रहे हैं। यस मैम, यस मैम। ओके, तो हम इसको जो है वो वेटेड पोजीशंस के लिहाज से इसका जो है वो आंसर निकाल रहे होते हैं। तो वेटेड पोजीशन के लिहाज से निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास हर पोजीशन होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट पे आपके पास 2 raised to 0 वाली पोजीशन हो गई। ठीक है, ये मैं आपको जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये हम साथ साथ करते जाएंगे। आई होप कि ये साथ साथ आपके पास खुल रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है यूजर एंड के ऊपर विजिबल होने में। ओके, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. So you see this was our binary number। तो इसमें 2 की पावर जो 0 है ये आपका 1 के इक्विवेलेंट हो गया। किसी भी नंबर की पावर जो 0 है वो 1 के इक्विवेलेंट है। 2 की पावर 1 है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 स्क्वायर, ये 4। इस तरीके से आपने जितने ये डिजिट्स थे, जितने बाइनरी डिजिट्स थे उसमें आप लेकर आए और यही पैटर्न आपने लिखा। तो आपने देखा कि 2 raised to 6 के ऊपर 1 आ रहा है। 2 raised to 6, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 64। तो हम कैसे निकाल रहे होते हैं कि हम इन सारे जिस पोजीशन के ऊपर 1 आ रहा होता है हम उसको सम करते हैं। तो ये 1 किसके ऊपर आ रहा है? 64 जो वेटेड पोजीशन है उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से 64 प्लस बाकी कहीं पे 1 नहीं आ रहा, वरना हम जो उसका इक्विवेलेंट होता उसको सम करते। तो ये बाइनरी जो है वो डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट बना है? 64 के इक्वल बना है। अच्छा, अगर मुझे इसका रिवर्स करना हो, एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड मेथड आपने ये सीखा होगा जिसमें हम 2 से डिवाइड करते जाते हैं। यू रिमेम्बर दिस मेथड? Yes, ma'am. कि 45 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो ये 22 से आया कि 44 बनेगा। लेकिन इसमें आप रिमाइंडर नोट करते जाते हैं कि रिमाइंडर जो है वो क्या बना कि 44 बनेगा 22 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो, लेकिन 1 बचेगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक,
इसी तरीके से 2 को फिर आपने 22 से डिवाइड किया तो 2 11 22, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा तो आपने 0 नोट कर लिया, एंड सो ऑन करते करते आप आए इस पोजीशन पर कि 2 1 जो 2 है और रिमाइंडर 0। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखने का जो है वो क्या मतलब है, रिवर्स ऑर्डर में जब आप लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, आप कैसे लिख रहे होते हैं? बॉटम से टॉप तक लिखेंगे। बॉटम से जो है वो आप इसको टॉप के ऊपर लेके जाते हैं, यानी ये पहले आपने 1 से स्टार्ट किया और ये आप इस तरीके से इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपका, ये क्या बन गया, इसको मैं रिवर्स में लिखूं तो ये क्या बनेगा, 1। विजिबल है ना आपको? 0 देख 1 के 1 बताएं। 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, अब ये आपके पास क्या नंबर बना, ये आपका जो है वो 45 ने इसको कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, 45 जो था डेसिमल था और इसको आपने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। ठीक है, अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल में, सो हाउ कैन आई कन्वर्ट इट इन हेक्साडेसिमल? मैम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। पेयर बनते हैं या पेयर तो 2 का बनता है ना? जी मैम। बनता है ना, 4 का क्या बनता है? चार बिट की जो कलेक्शन होती है उसको आप क्वाड कहते हैं ना। चार जो बिट्स हैं इनको लेट्स से कि ये जो बिट्स हैं आपके पास, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, और ये बाकी जो 2 बिट्स बच रही हैं इसको आप नहीं कर सकते अगर, तो हम यहाँ पे क्या करें, हम 2 0 लगा सकते हैं। किसी भी नंबर के Yes, शुरू ma'am. में अगर हम 0 लगाएं तो उसकी सिग्निफिकेंस पे फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है, तो अब ये जो पहला नंबर जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है ये किसके इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में? 0010 किसके इक्विवेलेंट होता है? 0010 एक 2 के इक्विवेलेंट होता है, राइट? 2 के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। और जो है वो उसके बाद 1101 ये किसके इक्विवेलेंट होता है? मैम 13। बी के होगा, बी के होगा मैम। 13 होता है डेसिमल के अंदर और हेक्साडेसिमल में ये किसके इक्विवेलेंट होता है? डी के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो आपका नंबर है ये हेक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाता है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो उसको आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और उससे फिर आप ये बना सकते हैं। तो अब वो जो मैं बात आपको कल से कह रही हूँ पहली क्लास से कि ये जो नंबर सिस्टम है या ये जो कन्वर्जन्स है ये आपकी टिप पर होनी चाहिए। अब जैसे किसी ने कहा कि 13 से निकाला ना, तो आपको जहन में होना चाहिए कि ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। वी वुड बी कवरिंग मैनी एग्जाम्पल्स जिसमें आपको ये याद होना चाहिए। अब मैं कहूँ कि आपके पास A जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि ये 10 की बात हो रही है, ठीक है। अगर B हम कहें तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? 11 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। C 12 के इक्विवेलेंट होता है। D जो है के इक्विवेलेंट 13 होता है। E 14 14 और F जो है 15 वो हो गया 15 के 15 इक्विवेलेंट। अगर मैं F से आगे जाऊं तो हेक्साडेसिमल में F से आगे क्या नंबर आएगा? मतलब ये डेसिमल वाली काउंटिंग चल रही है ना, तो यहाँ का जो नहीं 16 आएगा। है अगर इसको मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? मैम नहीं होगा। मैम नहीं होगा। नहीं नहीं होगा? नो मैम। नो मैम नहीं हो।
तो हेक्साडेसिमल में क्या f पे गिनती रुक जाती है, उससे आगे जाती ही नहीं है? मैम हेक्साडेसिमल है इसलिए 15 तक हो जाती है, 0 to 15। मैम 0 से होता है ना काउंट 15 मैम तक, तो मैक्सिमम 16 काउंट हो गए। 15। अच्छा, अगर आप जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है आपका, ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब टोटल कितने नंबर है उसको डेसिमल क्यों कहते हैं? 0 से लेकर 9 तक जाता है, 10 होते हैं, और 10 की वजह से हम डेसिमल का लफ्ज यूज कर रहे होते हैं ना। तो 9 के बाद क्या नंबर आता है? काउंटिंग जो चलती है डेसिमल के अंदर वो कैसे चलती है? फर्स्ट आप 9 तक गए हैं तो 10 नंबर ही ना, जब भी तो हम इसको बेस 10 कहते हैं। उसके बाद फिर क्या शुरू होता है? 10 से शुरू होता है, 11 गया, और उसके बाद क्या आ जाता है? ये कहाँ तक जाता है? 19 तक जाता है, ठीक है। फिर आपके पास नंबर क्या होता है? 20, 21, लेकिन फिर कहाँ तक गया ये? हर दफा एक 10 नंबर की सीरीज बन रही है ना, और उसके बाद फिर आपका डिजिट चेंज हो जाता है, ठीक है। जब ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इस तरह से आपके पास लॉजिक होती है कि 0 से 9 गया, उसके बाद आपका एक डिजिट एक्स्ट्रा आ गया ना, 10, और 19 तक गया, फिर 20 से 29 तक गया। तो जब आप ये डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ऐसे यूज करते हैं, तो क्या यही जो चीज है वो हेक्साडेसिमल में नहीं होगी? हेक्साडेसिमल में क्यों आपके पास गिनती आके यहाँ पे रुक जाएगी? मतलब हेक्साडेसिमल में आपके पास सिर्फ 15 नंबर होते हैं, क्या यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर थे, गिनती 9 पे रुक गई? चली ना आगे, 10 से लेकर 19 तक गई, 20 से लेके, और कोई लिमिट ही नहीं है, काउंटिंग जो है वो चलती जाती है, ठीक, इन्फिनिटी तक चलती है। तो जो बाकी नंबर सिस्टम है, क्या उसमें अब ऑक्टल है तो उसमें क्या 0 से लेकर 7 के बाद काउंटिंग बंद हो जाएगी? या अगर हेक्साडेसिमल है तो उसमें 15 के बाद काउंटिंग होगी ही नहीं? मैम होती है, एक डिजिट बढ़ जाता है। डिजिट बढ़ना जाएगा। ये जो बोल रहा है इसके पास काफी शोर आ रहा है, कौन बात कर रहा है ये? तो ये जो आइडिया दिया किसी ने कि एक डिजिट बढ़ेगा, तो बढ़ने का मतलब f के बाद क्या होना चाहिए? कीपिंग इन माइंड द डेसिमल नंबर सिस्टम, 10 होगा। 10। अब 10 को आप जो है वो जैसे प्रोनाउंस या कह लें उसकी जो टर्म है वो सही नहीं कर रहे, जवाब सही दे रहे हैं। मतलब 10 हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोबारा से ये 10 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट 16 नंबर्स आएंगे, ठीक है। 0 से लेकर 15 तक जाएगा हर दफा उसी तरीके से जैसे यहाँ पर 10 से लेकर 19 तक गया। लेकिन इसको हम 10 नहीं कहेंगे, क्योंकि 10 हम किस में कहते हैं? डेसिमल में। तो डेसिमल में तो ये 16 के इक्विवेलेंट है, हेक्साडेसिमल में ये कहलाएगा 10, ठीक। तो अगर मैं लिखूं 11, तो इसका मतलब है डेसिमल में वो किसके इक्विवेलेंट होगा? 17 के इक्विवेलेंट होगा। इसी तरीके से अगर आपने जो है वो लिखा इसके बाद 11 के बजाय जो है वो आपने क्या लिखा? इसमें क्या आता जाएगा फिर? 11 के सॉरी 11 के बाद आ गया आपके पास 12 आया, और ये आपके पास किसके इक्विवेलेंट हो गया? 18 के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से ये जो काउंटिंग है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूं? तो ये होते 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 आपके पास जो नंबर बनेगा लेट्स से कि ये आपके पास गया जो नंबर है वो 19 तक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 19 के बाद आपके पास हेक्साडेसिमल में क्या आ जाएगा? मैम 1A। 1A, क्योंकि हमारे पास 10 का नंबर नहीं होता ना हेक्साडेसिमल में, तो ये क्या हो जाएगा? 1A हो जाएगा। 1A के बाद दोबारा से फिर ये कहाँ तक जाएगा? इसका मतलब है 1A के बाद आ जाएगा 1B, और ये कहाँ तक जाएगा इस तरह से होते होते? 1E।
1F तक 1F 1F तक जाए, ठीक है। मैं इसको डॉटेड कर देती हूँ कि ये कंटिन्यूएशन के अंदर है, तो ये जाएगा आपका होते होते 1F तक। अब आप देख रहे हैं मैंने ऊपर वाले उसमें ये लिखा नहीं था, A से मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया, लेकिन A से पहले क्या नंबर्स होंगे, 0 से लेकर 9 तक होंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D ये लेकर F तक गया। अब आप देख रहे हैं 1 0 से शुरू हुआ, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 1F तक जाएगा। अब 1F के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, पूरे 16 नंबर्स इसमें आ गए ना, 0 से लेकर 10 से लेकर 1F तक, टोटल 16 नंबर्स हो चुके। तो अब इसके बाद क्या होना चाहिए, 20 डिजिट चेंज होगा, और डिजिट चेंज होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 20। तो यानी इसी तरीके से जैसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कहा, इसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल है उसमें किस तरीके से जाएगा, 0 से लेकर 9 गया, उसके बाद A आएगा, B आएगा एंड सो ऑन अप टू आएगा, ठीक। फिर ये 10 से स्टार्ट होगा, और 10 से स्टार्ट होने के बाद 19 तक जाएगा, फिर 1A तक जाएगा, 1B अप टू 1F, 20 से लेकर C, द काउंटिंग डज नॉट स्टॉप हियर। तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए, या ये रिकैप मैं करवा रही हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, जब आप लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या जब आप मेमोरी लोकेशंस के ऊपर डेटा लिख रहे होते हैं, तो आपको डेटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो समझ में आए ना कि जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है। आप काउंटिंग भी अगर लिखते थे तो उसमें बाइनरी में भी लिखते थे, और अगर आपसे कहा जाए कि ये हेक्साडेसिमल में किसके इक्विवेलेंट बनेगा, लेट्स से आपने एलईडीज पे कहा कि क्या पेयर हो रहा है, एलईडीज पे आपने मेजर किया कि ये जो डेटा है ये बना, 0011 की फॉर्म में लिखना जो है वो अगर लार्जर डेटा हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे ज्यादा आसान क्या है कि हम डायरेक्टली इसको लिखें कि ये किसके इक्विवेलेंट है। 11 किसके इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में, 70 किसके इक्वल होता है, बी मैम ये 3 के इक्वल होगा, 3 के इक्वलेंट है। अब आप देखें ना कि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है बताने में, सो दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स दैट 1 दिस इज इक्वलेंट टू 3, और ये 1100 जो है ये किसके इक्वलेंट होता है, मैम सी के इक्वल होता है। ठीक। तो ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए कि अगर मैं A कह रही हूँ तो A कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इसका जो बाइनरी पैटर्न है वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि ये हम क्योंकि डेसिमल में 10 के बराबर होता है, इसका मतलब है कि ये 1010 का पैटर्न है। अगर हम 11 की बात कर रहे हैं तो 10 एक डिजिट बढ़ेगा ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट के ऊपर अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक नंबर बढ़ जाएगा, तो ये 11 के इक्वलेंट है। सिमिलरली C की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 1100 के इक्वलेंट है। D की बात कर रहे हैं तो ये इससे एक ज्यादा होगा, इसका मतलब है 01 के इक्वलेंट होगा। E की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे ही E कहा जाए आपके जहन में यूं फौरन आना चाहिए कि 1110 के इक्वलेंट होगा। F है तो इसका मतलब है कि सारी की जो सारी बिट्स हैं वो हाई होंगी, ठीक। सो दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स हाउ यू कन्वर्ट द डेटा from one number system to another number system. You don't have to use this division method, ये आपको बार बार डिवीजन मेथड यूज करना पड़े, तो आपकी ये टिप्स पे होना चाहिए। अच्छा, इसका ये जो 45 नंबर मैंने पूछा कि आप रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो रिमाइंडर वाले मेथड से ऐसे हुआ जी। मैम 2F का क्वाड नंबर कैसे बनेगा फिर, 2F का क्या बनेगा, क्वाड नंबर कैसे बनेगा, जैसे बाइनरी नंबर कैसे बनेगा, जी बाइनरी नंबर 2F का। 2F का आसान है, अगर आप 2F लिखते हैं तो 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, 0010, और जो F है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 टाइम्स दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू F। तो इसी तरीके से कोई भी आपके पास 2E आ जाए या C आ जाए तो आपको ये सारे बाइनरी पैटर्न्स
ये कितने बने आपके A B C D E F 6 ही तो पैटर्न्स हैं, तो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, तो आप क्विकली इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। अच्छा, मुझे ये डायरेक्ट मेथड से कोई बता सकता है 45 का, अगर मैं ये रिमाइंडर वाला मेथड ना यूज करूं रिवर्स ऑर्डर में लिखने वाला, तो डायरेक्ट मेथड से आप कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि हम वेटेड पोजीशन को सम कर रहे होते हैं, राइट? तो 45 बनाने के लिए हमें क्या क्या नंबर्स चाहिए होंगे? लेट्स से कि मुझे 64 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 45 से बड़ा है 64 का नंबर, तो मैं अगर यहाँ पे 1 लिखूं 32 हो गए। 45 बनाने के लिए मुझे और क्या चाहिए? 40 अगर मैं बना दूं, 32 में मैं क्या ऐड करूं कि 40 हो जाए? 8 मैम। मैम 8। 8 तो मैंने इस, ठीक है, इस वेटेड पोजीशन अब कितने बच गए? 40 हो गए। 5 मुझे बनाना है, तो मैं कहाँ पे लिखूं? एक मैं लिखूं 4 के ऊपर 34 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखूं, तो ये रिमाइंडर वाला जो काम था वो भी मैंने डायरेक्टली कर लिया इसको, ये बन गया आपका, और इसको आप टैली कर ले, ये आपका यही नंबर बन रहा है जो आपका रिवर्स ऑर्डर में करने से बन रहा था कि किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कि आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे कर लें, वरना जो है वो आप इसको, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बन रहा है, ये शुरू की 2 बिट्स थी वो हम 0 0 कर लेते हैं, उसके बाद जो है 0 और ये 1 1 0 1, ये बन रहा है नंबर आपके पास। ये रहा वो 1 1 0 1 वाला जो हमने रिमाइंडर से निकाला था, और ये वाला पैटर्न है, और ये 0 1 0 जो आपका ये 2 के इक्विवेलेंट बन रहा है। तो आप ऐसे निकालें, चाहे आप जो है वो ये रिवर्स ऑर्डर में करके निकालें, वो आपकी मर्जी है कि मेथड आप कौन सा यूज करते हैं। ओके, बट दिस वाज जस्ट अ रीकैप कि किस तरीके से जो है वो आप नंबर सिस्टम को हम यूज कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर सिस्टम है, अब इससे फिर आगे की क्या एवोल्यूशन हुई थी? कोड्स बने, बीसीडी कोड बना, आस्की कोड बना। बीसीडी जो कोड है वो क्या होते हैं? 8421 मैम। 4 बिट का कोड होता है, एंड बीसीडी स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल, राइट? कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं? मैं यूसेज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करूंगी कि आपको पता हो कि जो चीज आपने पढ़ी है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो 4 बिट का ये जो आपने कोड पढ़ा बीसीडी, एक तो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर यूज होते हैं। आपने वो थंब व्हील स्विचेस होते हैं या ऐसे होते हैं जिसको आप बार बार प्रेस करें तो नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है, जैसे आपने पेट्रोल पंप के ऊपर भी देखा होगा, डिफरेंट जो उसमें लीटर्स का एक रोलिंग उसमें चल रहा होता है और वो नंबर नजर आ रहा होता है। तो ये इस तरह के स्विचेस होते हैं जिसके ऊपर आपका जो डिजिट है वो चेंज हो रहा होता है, उसकी वजह से, स्विच को प्रेस करने की वजह से। इवन आपके पास यहाँ लैब के अंदर कुछ ट्रेनर्स भी हैं जिनके अंदर ये बीसीडी स्विच लगे हुए होते हैं। तो ये जो नंबर सिस्टम है इसके थ्रू आप इन स्विचेस को यूज कर सकते हैं जो कि बीसीडी डेटा जनरेट करते हैं। होता क्या है इसका मतलब कि हर जो एक डिजिट है उसकी 4 बिट इक्विवेलेंट पैटर्न बनता है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट होता है वैलिड और इनवैलिड कोड्स का। तो इनवैलिड कोड्स कौन से होते हैं बीसीडी में? जैसे हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0 से लेकर F तक होते हैं, डेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 होते हैं, इसी तरीके से बीसीडी में कैसे नंबर्स होते हैं? मैम 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 से 9 तक होते हैं, इसमें ABCD वगैरह नहीं होते। तो अगर 3 7 को मुझे कन्वर्ट करना हो बीसीडी में तो वो क्या कन्वर्जन होगी? थ्री 7 बीसीडी में किसके इक्विवेलेंट होगा? सिंपली 3 का इक्विवेलेंट आपके पास क्या होता है? 3 का इक्विवेलेंट वही बाइनरी, और 7 जो है उसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? 0 1 1 1। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के स्विचेस होते हैं जो बीसीडी को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, आस्की कोड्स हो गए, ये फिर मैं बाद में कंटिन्यू करती हूँ।
नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया आपका. But this was only just to give you a recap so that you do not stuck in the further topics ahead which we have to cover. This is the base. अगर किसी की ये बेस नहीं भी बनी हुई है तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी बुक उठा के या कोई भी नेट से ट्यूटोरियल उठा के इसको इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी. अटेंडेंस आपने आई होप कर ली होगी. जिन्होंने नहीं की है तो मैं दोबारा से ये बता रही हूँ सिर्फ इनिशियल क्लासेस के अंदर कि इसके जो टैब्स हैं इसमें आप जाएं और जो आपका सेक्शन है उसका फॉर्म आप खोलें और वहाँ से उसकी जो अटेंडेंस है उसको आप पंच इन कर दें. तो ये फॉर्म आपके पास ऐसे खुल जाएगा और सिर्फ अपना रोल नंबर खाली इसके अंदर पंच इन करें. अपने पास एक रिकॉर्ड रख लें कि आपके पास ईमेल आ जाए और इसको सबमिट करवा दें. मैम खुल नहीं रही है हमारे पास अटेंडेंस. खुल नहीं रही है आपके पास अटेंडेंस? तो आप मुझे चैट बॉक्स में Yes, ma'am. चैट के अंदर अलग से ये रिमाइंड करवा दें. ओके मैम. जिनका अगर ना खुल सके तो मुझे चैट में कर दें, वरना मैं इससे कंपेयर कर लूंगी. मैंने डाउनलोड भी कर लिए यहाँ से लिस्ट. ठीक है. See you in the next class, but please do revise these topics which you have already covered in the digital electronics. I want the base up to the level of usage कि इसकी practical applications कहाँ कहाँ पर हैं. Otherwise ये चीज़ें पुरानी है, मुझे इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपकी इस लेवल तक की चीज़ें होनी चाहिए. ओके, अल्लाह हाफिज़.